तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत। Namaskar everyone. On Ashtami, the 8th day of Navratri, we honor goddess Mahagauri, who blesses her devotees with tranquility and endurance. Her color, pink, symbolizes compassion, kindness, and purity. And a quick reminder, When India Awards 2024 are scheduled in November, and registrations are now open. If you haven't registered yet, go and register now. The link will be shared in the comment section. Now, let's jump to our talk show, Nari Shakti. And as this year, our theme of Navratri are 9 N's. Today's N is Nirmohi selflessness. Our guest, RJ Snigdha, truly reflects selflessness, compassion, and warmth, and aligning perfectly with today's theme. Welcome, RJ Snigdha. Namaste and happy Navratri. Happy 8th day of Navratri. आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी से मना रहे हैं दशहरा को. Thank you, Vandita, for having me over. So, I will request you to introduce yourself to our viewers. Okay. As Vandita told, I am RJ Snigdha, and RJ is not an initial, it earned decoration, yes, a former radio jockey. That is what I have done for the longest time of my life. I remember about 13 to 15 years I've been on radio. I am a professional MC, a celebrity anchor, and I have done shows across the country and even across the globe, certain shows even overseas. Besides the mic and the people and entertainment, there's a lot more that I do. Well, coming one at a time, I do multiple things, but let me just tell you very briefly. I'm also a corporate soft skill trainer, and this I've been doing for 18 years now. Yes, you heard that right. I'm a communication expert, and I do this for the MNCs, Fortune 500 companies that you can think of. That is my bread and butter, I would say. And if I have to come to passion, something very passionate about, maybe I chose it as a choice rather, is being into fitness. I am a fitness expert and a trained nutritionist for again 15 years now. So everything that you hear is a decade and a half is minimum that I've been doing, and I love doing what I do. I love to talk, so I will allow Vandita to ask me so that I get an opportunity to talk. Lovely. That's lovely to hear about you. And you are in so many fields and doing so well from such a long time. Yes. So, Oh, one more thing. I think since you are talking about the I love the topic, by the way, Vandita. Nirmohi. Wow. So, is it Nirmohi? Do you call that Nirmohi? What do you say? yes, we call it Nirmohi, Yeah. selflessness. Yeah. And Some selflessness. please, please. Yeah. So I have been doing something that just kind of I it just hit my mind as we were speaking. Twice in a year, okay, twice in a year, I make sure, and this is a commitment that I make to myself and no one else. I do events which are fundraisers for absolutely nothing for myself. So I am a professional. I do work for money, but these are two times that I do in a year. One in the summertime, in the month of April, I do for autism awareness. And during the autumn, you just saw that I did yesterday, in fact, somewhere around September, October, I do for women. Women empowerment is something that I work for very, very strongly. So I think when you talk about doing something, giving back to the society is something that I do. Definitely make it a point to do twice a year. Yeah. That's great. I mean, there are so many things what you are doing, and like I have been in connect with you. Once we decided the theme for this Navratri sessions, as soon as I heard the word selflessness, I thought about you, and I thought that it will be a perfect fit for you. That's you will be perfect fit for that word. So I'm really honored. Thank you so much. You don't know how much you have actually touched my heart by saying this. Thank you, Vandita. Thank you so much.
So I'll start from your career like RJ. What inspired you to choose being an RJ as a career option? This is $1 million question. Actually, not many, or probably no one, maybe a handful of people who very closely, have been associated with me would know what goes behind being an RJ for that long. You'll be surprised that I was handpicked. Yes, you heard that right. I was handpicked from a show where I was just doing the anchoring part for a friend. Okay, I was doing for a friend. It was on a commercial basis, but it was more like, चलो दोस्त है, दोस्त के लिए कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो होगा होगा. I was not looking at it as like money thing. Anchoring भी मैंने वैसे ही बड़े शौक से मैंने mic उठाया and I started. So among the audience was the station director sitting there. One of the station directors of radio station was sitting there. He comes to the green room during the break time. He gives me a card and he says, call me as soon as possible, rather call me tomorrow. ऐसे वो बोल करके वो हाथ में मुझे कार्ड देके चले गए. And I, being the person I am, मैं पूरा दूसरे कामों में busy हो गई. And this what I'm talking about is 15 years ago. मैं करीबन भूल ही गई कि भाई मुझे किसी ने कार्ड दिया था कॉल करने के लिए. कार्ड तो बहुत लोग देते हैं, so you put it in the handbag and you forget it, right? 3 या 4 दिन निकल गए वंदिता, मैं किसी चीज के लिए तैयार हो रही थी and I wanted to change my handbag. ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि हम लोग एक हैंडबैग से सामान दूसरे हैंडबैग में डालते हैं, स्पेशली वॉलेट वगैरह जो होती है. तो उसके लिए मैंने हैंडबैग निकाला, दूसरा हैंडबैग निकाला, और ये हैंडबैग को मैं उसमें खाली कर रही थी तो ये कार्ड बाहर आया. बाहर आते ही वंदिता मुझे ध्यान आया कि इन्होंने तो मुझे कॉल करने के लिए बोला था, राइट? एंड आई सेड मैंने तो कॉल ही नहीं किया, ये है कौन? जस्ट इमेजिन, ओके, ये है कौन? एंड आई टर्न द कार्ड एंड आई सी स्टेशन डायरेक्टर, ओके, वर्ल्ड स्पेस एंड ऑल. मैंने कहा ये क्या है, क्यों कॉल कर रही है मुझे, स्टेशन वाले क्यों कॉल कर रहे हैं? फिर मैंने फोन उठाया, उनको मैंने फोन लगाया एंड यू विल नॉट बिलीव, ये लगता है सीधा एक फिल्मी लाइन है, बट सच बात बोलती हूँ, बॉलीवुड मूवी से कुछ कम नहीं हुआ है मेरे साथ जो हुआ है. मैंने उठाया फोन तो बोलते हैं तुमने अभी याद किया मुझे, तुमको तब बोला था कॉल करने के लिए. ऐसे ये इतना डांट क्यों रहे यार, फोन ही तो क्यों करना था. तो क्या बोले पता है आपको? दैट डे व्हेन आई कॉल्ड ना वंदिता, उस दिन मैंने जब कॉल किया 12 बज रहे थे तब, करीब 12, ठीक है. उन्होंने मुझे बोला 2 बजे के अंदर, मतलब सोचो आप 12 बजे कॉल हुआ, 2 बजे के अंदर आप स्टेशन आओ, आज लास्ट डे ऑफ ऑडिशन है रेडियो जॉकी के लिए, और मेरे को आपकी आवाज और आपका अंदाज बहुत पसंद आया, आप आओ और कम से कम ऑडिशन दो, बात की बाकी देखी जाएगी. मैंने बोला अभी 12 बज रहे, मैं he says I don't know anything, just come, 2 o'clock is the cut off date and today is the last date. तो पता है कहीं ना कहीं वंदिता मैं सोचती हूँ कि किस्मत जो है ना, कोई जरूरत नहीं थी उसी वक्त पर्स को बदलना, वो कार्ड को बाहर आना, वो फोन करना, ये सब बहुत यूनिवर्स बहुत कंस्पायर करता है हमारे सबके साथ लाइफ में. मैं वहां दौड़ करके गई, शायद मैं 1 सवा 1 तक किसी तरह हटकते पटकते पहुंची, बिकॉज बहुत दूर नहीं था मेरे घर से. मैं गई एंड आई एंटर्ड, और उसके बाद वो टेस्ट, रिटन टेस्ट, क्विज टेस्ट, उसके बाद ऑडिशन रूम के अंदर फेंक डाल दिया अकेले, लिटरली फेंक दिया. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे बंद कर दिया और आप किसी को देख नहीं पा रहे हो यार, और बोल रहे हैं कि बोलो आपको जो मन है, अगला 1 मिनट आपका है, और दीवारें काटने को खा रही है. मैंने ये हो क्या रहा है? बट आफ्टर ऑल दिस, जब फाइनल इंटरव्यू में गए, फिर फाइनल इंटरव्यू में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने मुझे पूछा क्या आपकी आवाज हमेशा ऐसी है? अब मैं ये सोचूं कि भाई आपको पसंद आया या नहीं आया, तो मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं. मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने हाँ बोला और उसको अगर पसंद नहीं है तो मैं गई, आउट हो गई, और अगर उसे पसंद आया और मैंने ना बोला तो मैं आउट हो गई. तो मैंने 1 सेकंड सोच करके मैंने, पता है, उनको बोला आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ऐसे बोला मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी आवाज हमेशा से? तो कहते मुझे बहुत पसंद आया. मैंने कहा मेरा हमेशा ही ऐसा है. Very smart. Yes. And yeah, so that was it. And that is how I got into radio, Vandita, trust me. I've been a communication expert, as I told you, with MNCs as a soft skill trainer. But जब मेरे को वहां से handpick करके
मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए सिर्फ उन्होंने मुझे बुलाया, बाकी हम्म, सब मेरे नसीब की बात थी। मैंने टेस्ट पास किया, मैंने क्विज पास किया, मैंने जनरल नॉलेज पास किया, मैंने ऑडिशन पास किया, मैंने इंटरव्यू पास किया। 95 applicants में I was in the five. So wow, wow. that is something. So I chose, I would never ever forget how I chose this as my career. So yeah, that was my little story. I know मैं आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं, लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे। and there are multiple tests for becoming a RJ. I wasn't aware about it. मुझे लग रहा था वो ओह स्पीकिंग वगैरह लेते होंगे स्टाइल के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपको तो यहाँ तक नॉलेज होना चाहिए म्यूजिक के बारे में। तो वो जब मैं टेस्ट देने गई तो मैं तो पूरा, यू नो आई सेड ये क्या है। दे विल टेस्ट योर नॉलेज फॉर म्यूजिक। बट हाँ, अब चीजें बदल रही है। मैं आपको 15 साल हाँ, पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, 15 साल पहले आरजेस बहुत नहीं हुआ करते थे, हैंडफुल हाँ, होते थे। और बहुत ही ज्यादा, अगर आपने नोटिस किया होगा, उस जमाने की बड़ी क्वालिटी होते थे। हम्म, मैं, मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आरजेस के लिए आज भी। लेकिन आज के जमाने में अगर आप सुनते हैं ना रेडियो, तो कुछ कुछ कमी है जो हम लोगों में एक अलग था, अब वो नहीं दिखता है मुझे। खैर, अब यू हैव टू ग्रो विद टाइम, सो इट्स ओके। आई एम स्टिल एन एंकर। आपने मुझे एंकर के फॉर्म में खूब देखा है, तो आपको पता है मुझे बहुत शौक है लोगों का, माइक का, बात करने का, म्यूजिक का नॉलेज रखने का, वो सब मुझे बहुत शौक है। सो या, दैट इज हाउ आई लैंडेड अप एंड एंडेड अप एज बीइंग रेडियो जॉकी। वेरी नाइस। सो एंड मैंने आपको एंकर करते देखा है, और मैंने ये भी देखा है साथ में कि आप बहुत सारे लेडीज को हेल्प करते हैं। So, my next question will be that you are always ready to help other women in every way possible. And is this your inborn trait for you, or is it something that you developed or got inspired as the life went, or something like that? It's not a difficult question, to be very honest. When you're asking, I think it is an innate quality. हो सकता है कि quality है कि मुझे generally help करने की आदत है। ठीक है, let me put it this way first and then I'll go to your question. मुझे बहुत बहुत एक कहीं भी, कभी भी, किसी को भी मुझे अगर कुछ करना है तो मैं करती हूँ, ये नहीं देखती हूँ कि कौन है। Coming to your question, for women, this I think I purposely chose. And why I chose, because I feel कि when I talk about 18 years ago, 15 years ago, you know, Andita, those days event management में होना, event industry में एक lady का successful होना was not a common thing, हाँ? It was a men dominated industry, ठीक है? तो मैंने बहुत struggle देखे हैं, मैंने बहुत challenges face किए हैं, बहुत बहुत, मतलब बहुत। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरे को लोगों ने ट्राई किया कि ये कंपनी बंद कर देगी, शायद ये काम करना बंद कर देगी, बट आई नेवर स्टॉप्ड, आई कंटिन्यू डूइंग, बिकॉज लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। ये जो रिस्पेक्ट और प्यार लोगों से मुझे मिला है ना वंदिता, मुझे लगता है कि उसी वजह से मैं टिकी रही, और आज भी, टचवुड, आज भी मैं टिकी हुई हूँ इस इंडस्ट्री में। नो मैटर, यू नो, एज तो बोलते हैं कि इज अ नंबर, एज लॉन्ग एज यू हैव द एनर्जी एंड द यू नो द फिटनेस एंड द पैशन टू डू व्हाट यू डू, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील, यू नो, यू शुड जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी प्लीजिंग, एंड यू शुड नो व्हाट यू टॉकिंग। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। सो फॉर वुमेन, आई थॉट कि जब मैंने इतना स्ट्रगल किया है, कैन आई मेक इट लिटिल इजियर फॉर वुमेन। तो मुझे जहां मौका मिलता है ना वंदिता, जहां, ये बात आप सच बोल रहे हो, मैं सोच करके नहीं करती हूँ। मेरे को जहां मौका मिलता है, जहां मुझे लगता है कि हाँ, आई थिंक आई कैन हेल्प दिस लेडी डूइंग समथिंग, एंड आई विल नेवर थिंक कि मैं ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। आई डोंट थिंक एट ऑल, एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं आता है वो दिमाग में। आई गो आउट ऑफ माई वे समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है, इट्स ऑल्सो डिसएडवांटेज, कि आप इतना करते हो कभी किसी के लिए कि आप, यू नो, you put your head into it so much, you want to do it for that lady, and you continue to force yourself to do it despite you being you know busy life or whatever. तो मेरे ख्याल से it's a combination. मैं basically nature wise help, बहुत ही helping kind हूँ, लेकिन women के लिए I think I've come because of my struggle, and I want women to really get a platform जहां मुझे नहीं मिला, वो मैं देना चाहती हूँ।
That's what I want to do. Yeah. So, what you were trying to mention in some piece, what you were talking just now, कि उसका कुछ एक disadvantage भी होता है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि do people really appreciate the selflessness behavior or they take advantage of it? देखिए, appreciate is something that आपको पता है बुरा कब लगता है, जब इंसान बोलते हैं ना कि आपने किसी के लिए किया. देखो वंदिता, मैंने आपको भी हेल्प किया, मे बी आई हैव हेल्प्ड मेनी अदर वुमेन हाउएवर वे आई कैन. ठीक है, आज आप मुझे अप्रिशिएट कर, आप जो कर रहे हो ना, आज आप टॉक शो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो. Definitely. इसीलिए आपने मुझे, करेक्ट. तो ये क्या होता है, ये मुझे लगता है इट्स अ रिवॉर्ड. ये मैंने सोचा ही नहीं था कि करेगी कभी वंदिता वैली, है ना. मैंने कभी नहीं सोचा था, आपने करा, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि एप्रिसिएशन इज समथिंग दैट यू विल फील वेरी डिसअपॉइंटेड एंड फील हर्ट जब नहीं करता कोई, है ना. इसलिए मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में सीखा है कि एक्सपेक्ट मत करो. जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, तो आपको बुरा नहीं लगता है. और जब एक्सपेक्ट नहीं करते हो और फिर भी कोई आपके लिए करता है या अप्रिशिएट करता है, तो दिल भर जाता है, जो मेरा आज हुआ है. आई टोल्ड यू, यू रियली टच माई हार्ट बाय सेइंग दिस, कि मैंने जब निर्मोही सुना तो मेरे दिमाग में सिर्फ आज जिसने गाई, दैट इज समथिंग which touched my heart a lot, you know. तो ऐसा होए तो ठीक है, you know, हो गया. लेकिन चैलेंजेस ये भी हैं कि आप किसी के लिए करते हो तो कोई बहुत एडवांटेज भी लेता है. यू आर राइट. तब आई एम समबडी हु इज वेरी प्रोफेशनल. तो मुझे अगर लगे कि कोई एडवांटेज ले रहा है, तो आई यूजुअली व्हाट आई डू इज आई लेट गो, विच मीन्स हो सकता है कि मैं उसी इंसान को दोबारा मैं हेल्प ना करूं, लेकिन मैं कभी बदला भी नहीं लेती हूँ, ना ही मैं किसी का बुरा चाहती हूँ. पर आई जस्ट लेट गो. जब वो पर्सन को खुद एहसास होता है, या वो खुद वापस आते हैं, या फिर वैसे ही वो रह जाते हैं, मुझे नहीं, मैं आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट. बट या, यू आर राइट, देयर आर पीपल हु डू टेक एडवांटेज बिकॉज यू आर हेल्पिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग सेल्फलेसली. तो वो बार बार वो एक्सपेक्ट करते हैं, फिर टेक यू फॉर ग्रांटेड. ये तो बहुत होता है कि ये तो कर देगी, ये तो मना नहीं करेगी. तो ये होता है. सी, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स, राइट. बट आई थिंक जब आपका दिल साफ है ना, तो इतना असर नहीं पड़ना चाहिए. I mean, you mentioned two things और मुझे लगता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती हैं, जबकि हम सुनते सबसे हैं कि एक्सपेक्ट मत करो और लेट इट गो. ये दोनों चीजें, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू इनकलकेट इन योर ओन बिहेवियर, जो कि हम सालों से उसको सुन रहे होते हैं. बट इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू एक्सेप्ट एंड रियली गो फॉरवर्ड. You follow my Insta page, Vandita? Yes, I do. Yes. If you would have very recently, I think हफ्ता भर या maybe 10 दिन पहले मैंने एक I keep giving pep talks, right? मैं short talks देती हूँ, if you notice. उसमें एक मैंने लिखा था कि एक में मैंने बोला था exactly what you said. मैंने कहा, मैंने पूछा था लोगों से, वो पेप टॉक पे 30 या 40 सेकंड्स का पेप टॉक है. अगर आपके व्यूअर्स अभी if they want to follow RJ Snigdha as my page, they can actually listen to the pep talk. उसमें मैंने ये बोला है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आप उस फेज ऑफ लाइफ में आए हैं जहां पे आपने किसी के लिए बिना एक्सपेक्टेशन कुछ किया हो, और अगर कुछ तकलीफ हो तो यू हैव गॉट लेट गो. इट्स द टफेस्ट थिंग टू डू. इट इज वेरी टफ टू डू, वेरी टफ. और जब आप उस फेज या उस स्टेज पे पहुंचोगे, या आप रियलाइज करोगे कि आपने वो अटेन किया है, आप इतना स्ट्रेस फ्री रिलीज करोगे ना, आप वो सोच ही नहीं सकते वो जो फीलिंग है, क्योंकि आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है. आप बस करते जाओ. बट हाँ, हम लोग सुनते हैं, पर इतने सालों में मैंने सुना, लेकिन ये चीज मैंने हाल ही में किया है. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं शुरू से ऐसी हूँ. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. हम कोई भी जन्म से ही मंक या प्रीस्ट बन के नहीं आते हैं. हम सबने गलतियां करी हैं, बहुत कुछ हमने उंगलियां जलाई है, हाथ जलाया है, शरीर भी जलाया है. सो एक्सपीरियंसेस के बाद हाँ, एक चीज है कि मैं हमेशा हेल्प करती रही, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ना रख करके हेल्प करना, मैं सच बोलूं तो मे बी पिछले 6-7 साल
बस। उसके पहले तो मेरे को बहुत दुख होता था वंदिता, मैंने लोगों के लिए इतना किया और उसने 1 सेकंड के लिए मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, या फिर चलो थैंक यू छोड़ो, उसने तो मतलब मेरे लिए ये भी नहीं बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक्सपेक्टेशंस है हमारे, राइट। एक्सपेक्टेशन, और कोई एडवांटेज लिया तो भाई बुरा लग गया, तुरंत बुरा लग जाना। अब ये सब मेरा निकल चुका है, लेकिन बहुत वक्त लगता है। यू आर राइट, आपने ये बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए मैंने वो पेप टॉक भी किया था कि आसान नहीं है। आई थिंक इट इज द टफेस्ट फेज ऑफ वंस लाइफ। Correct. So, two things you already mentioned, like expectation we should not have and we should let it go. Yeah. What other thing you think that we should have one trait that should make more supportive environment for women to grow? Okay. See, making an environment is not just one single person's responsibility. ये एज अ कम्युनिटी ना करे, एक अकेली औरत कभी भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मैं कहती हूँ शुरुआत खुद से करो। तो जब कोई बोलता है ना, जैसे मैंने आपको ऐसे ऐसे ही बोला, ऐसे ही अगर जब कोई बोलता है कि यार क्या कर लोगे यार, अकेला हम कितना कर लेंगे यार, पीपल कम एंड से दैट, अरे छोड़ना यार, नहीं होता यार, एक अकेले हम कितना कर लेंगे। आई ऑलवेज से दैट स्टार्ट तो करो, कहीं तो शुरुआत करो। कल जब पीस वॉक के लिए गए ना, वो पीस वॉक किसके लिए था? इट वॉज फॉर विमेन्स सेफ्टी। जो केसेस हो रहे हैं, हमने उस केस को लेकर नहीं किया, हमने ये बोला आगे चलकर विमेन सेफ हो, तो हम वो पीस वॉक कर रहे थे। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, रजिस्ट्रेशन में 500 लोगों ने रजिस्टर किया। ठीक है, छुट्टी का दिन था, हमने कहा सब सुबह स्टार्ट करेंगे। इतने लोग नहीं आए जितने आने थे। मैंने मन में क्या ठाना था पता है वंदिता, मैं वहां 6:30 जाऊंगी, अगर कोई भी नहीं है तो मैं अकेले वॉक करूंगी। ये मेरा अंदर था। पर जब मैं वहां गई तो आते गए लोग, हाथ पकड़ते गए, जुड़ते गए, और हमने किया, और जितने आए मैं सबको लेकर के चली। तो कभी कभी ये होता है कि यू कैन नॉट थिंक who all are into it, when will it start, who will start. You be the start, you be the one who take the initiative. If you want to create an environment for women empowerment, to support women more and more, you have to take that step on your own कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप जो कर सकते हो वंदिता, हो सकता है मैं ना कर सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ हो सकता है आप ना कर सकते हो। तो अगर हम एक ये सोच करके चलें कि मेरे से जो हो बन पाता है उतना तो मैं करूं, सो जो मुझसे बन पाता है वो मैं करूं, जो आपसे बन पाता है वो करो। सो ऐसे अगर हर औरत किसी के लिए सोचेगी, तो पता है, एक मैं बहुत पावरफुल लाइन बोलने वाली हूँ अभी, ये मेरा मानना है, ये मेरा मंत्र है। जब आप किसी के लिए करते हो ना, अनजाने में आप खुद के लिए भी कर रहे हो, ये आप पता कर, बिना एक्सपेक्टेशन के जो आपको मिल रहा है वो आपको यूं ही मिलता है क्योंकि आप करते हो। तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेकंड, आपको मिलेगा जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो लोगों का जो वार्मथ है, लव, वो है ना, वो प्राइसलेस है, उसको आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते हो। इसलिए कभी कभी मुझे ये लगता है कि जब बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के जब आप दूसरों के लिए करोगे, ये कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसकी एक्सपेक्टेशन आप मत रखो, ये खुद से आती है। ये मेरा कहना है कि टू मेक एन एनवायरमेंट मच सपोर्टिव फॉर वुमेन, a woman has to empower the other woman. A woman is the one who fixes the crown of the others. आपने देखा है हर ब्यूटी पैजेंट में क्या होता है, जब अपना क्राउन, बाय द वे मैं खुद भी पैजेंट विनर रह चुकी हूँ 2006 and 2017. Yes, so that is something also I have done. So because I've been into modeling and I still do modeling, I'm very very fond of camera, I'm very fond of styling, I'm very fond of getting ready. देखो, that is what I said, ये मेरा दूसरा अवतार है कि मैं एक तरफ बहुत अच्छे से तैयार होना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। ऑन दी अदर हैंड, कॉज के लिए, सपोर्ट के लिए भी मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो ये नहीं है कि ग्लैमर है तो सब्सटेंस नहीं है, मेरे अंदर ग्लैमर और सब्सटेंस दोनों बराबर से बैलेंस करके मैंने रखा है। तो मुझे वही लगता है कि अगर मैं
अपना क्राउन उतार करके अगले विनर को जब मैं पहना रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने वो दिया बिना किसी फीलिंग के कि मेरा तो चला गया। मैंने ये सोचा कि मैंने अपना किया, चल अब इसकी बारी है, क्या मैं इसको एम्पावर कर सकती हूँ? यस। आप जब दे रहे हो ना तो आप अपनी एक्सपीरियंस उसको दे रहे हो। सिमिलरली जब आप किसी को प्लेटफॉर्म देते हो, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो विभिन्न उनके या बिजनेस में बोलो या जो भी, आई मीन यू नो देयर आर सो मेनी होम ग्रोन ब्रांड्स एंड लेडीज आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑन देयर ओन नाउडेज। जब आप उनको सपोर्ट करते हो, आप बेसिकली उनको क्या कर रहे हो, आप उनको इंकरेज करते हो। अरे कुछ नहीं हो पाता तो यार थोड़ा सा उनसे अपने घर के लिए या अपने लिए ही सामान ले लो, उनको कम से कम बताओ, फीडबैक दो कि बहुत अच्छा था जो तुम कर रही हो, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। जेन्युइनली आप अप्रिशिएट करो लोगों को। दैट encourages, empowers and supports women। और एक औरत जितना दूसरी औरत के लिए कर सकती है, सच बोलो कोई नहीं कर सकता। वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। Correct. So I don't feel like ending the show. It's so lovely to hear you. अरे But मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया शायद। वेरी नाइस टू हियर यू। आप बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, बहुत रेलिवेंट भी बोल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली, इट्स वेरी रेलिवेंट व्हाट यू आर सेइंग। बट as we come towards the end of the show, Yeah. is there any special message for our viewers? You know, whoever is hearing me right now, first of all, take care of yourself। मेरा एक मैसेज है जो बहुत क्लियर एंड लाउड है फॉर women, वंदिता। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। जब आप खुद को चाहोगे, जब आप खुद की केयर करोगे, तभी आप किसी और को प्यार बांट सकते हो या फिर उनकी देखभाल कर सकते हो। सेल्फ लव जब आप करते हो ना तो आप गिल्ट से मत करो, आप ये सोच करके करो कि मुझे अच्छा दिखना है। लुक एट द मिरर एंड से आई एम लुकिंग गुड, आई फील गुड। When you feel good and look good, you want to do things for others because you're happy। जब आप खुश हो तो आप किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए मैं कैसे कर सकती हूँ अपने लिए। बेशक करिए, आप जाइए, मूवी देखिए, शॉपिंग कीजिए, फ्रेंड्स से मिलिए, अच्छे कपड़े पहनिए, खाना बनाइए, बच्चों को देखिए, हस्बैंड देखिए, फैमिली देखिए, बट आप अपना ध्यान जरूर रखिए। कुछ भी हो, सेल्फ लव इज द फर्स्ट लव एंड द बेस्ट लव। ये मैसेज मैं हर औरत के लिए देना चाहती हूँ। It's so amazing. In this session of our Navratri, it has been like 2 to 3 of our women guests who have given something similar kind of message because everybody values it. Yes, and I think the times are changing. Yeah. The things are changing with women now। women are so evolved now, so progressive कि अब और वो नहीं रहता कि अगर मैं खुद के लिए करूं तो लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, ये तो खुद को ही देख रही है। नो, यू हैव टू, यू शुड लुक गुड। देखिए वंदिता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सेशंस, क्लास वगैरह सब खत्म होता है 8:30 बजे। मैं नहा के आई जस्ट अनवाइंड माई सेल्फ एंड आई एम इन माई शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड आई एम लाइक, पर आज मेरे को वंदिता ने इनवाइट किया, कैसे मैं देखूं, मुझे अच्छा लगना है। मैंने पिंक पहना, मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई, क्यों, क्या था, कुछ नहीं, फील होना अच्छा। तो आप खुद को भी देखकर खुश होते हो, यार मैं तो अच्छी लग रही हूँ। यू शुड अप्रिशिएट योर, राइट? Thank you, Snigdha, for joining. I'm wishing all of you the very best and खूब खुश रहिए। और जरूर देखिए, अगर आप बोलते हैं सपोर्ट करना तो दिस इज वन वे, यू ऑल कैन सपोर्ट एंड फॉलो ईच अदर्स पेज। अगर कोई कुछ कर रहा है, जब कोई इंस्टा कर रहा है, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाय द वे, अनदर थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 6-7 years नाउ। तो जब मैं ये करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आई इन्फ्लुएंस। सो व्हेन यू इन्फ्लुएंस, यू वांट पीपल टू फॉलो यू एंड टू appreciate what you do and be a part of what I do। तो वो एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर हो सके तो व्यूअर्स जरूर फॉलो करें, और मुझे आप जब फॉलो करोगे तो मैं आपको फॉलो बैक पक्का करूंगी, सपोर्ट तो मैं पक्का करूंगी। Wishing you all the best। Thank you so much, Vandita। Thank you so much for having me over and happy Navratri once again। और खूब खुश रहिए, keep smiling, lots of love and light। Thank you। Thank you, viewers, and we wish you happy Navratri once again.